Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we started our fourth topic, that is the international organization, right? In that we studied the introduction. An international organization is an organization established by a treaty or other institute governed by international law and possessing its own international legal personality, such as the United Nations, the World Health Organization, and NATO. International organizations are composed of primarily member states but may also include other entities such as other international organizations. Other state can be member of UN, and membership is valued because it confirms upon the member state international recognition of its sovereignty. Regional organizations are in sense international organizations as they incorporate international membership and encompasses geopolitical entities that operationally transcend a single nation state. Mm, they what they have been established a foster cooperation and political and economic integration or dialogue among state or entities within a restrictive geographical or geographical boundary. Then we started with the United Nations. When it was founded in 1947 after the Second World War by 51 countries committed to maintain international peace and security, developing friendly relations among uh, nations and promoting social progress, better security, better living standard and human rights. After Second World War established हुआ था 51 countries committed to maintain international peace and security, developing friendly relations among member nation and promoting socio progress, better living standard and human rights. Then structure of UN. Now the UN system is based on 5 organs: General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, International Court of Justice, and the UN Secretariat. The sixth principal organ, the Trustship Council, suspended operation on 1st November 1994 upon the independence of Palau, the last remaining UN Treasury territory. 4 of 5 principal organs are located at the main UN headquarters in New York City. The International Court of Justice is located in The Hague, while other major agencies are based in the UN office at Geneva, Vienna, and Nairobi. Other UN institutions are located throughout the world. Then languages कौन से वहाँ पे Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish. On the basis of the conventions on the privilege and immunities of the United Nations, the UN and its agencies are immunized from the laws of the countries where they operate, safeguarding the UN's impartiality with regard to the host and member countries. Then the UN obeys the Nobel Mari principle, which is binding on any organization that belongs to the UN system. This principle calls for salary that will draw and keep citizens of countries where salaries are highest, and also call for equal pay for work of equal value independent of the employee's nationality. Then the main organ of the UNO are General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trustship Council, the Secretary, International Court of Justice. अपन ने उसमें का पहला पढ़ा था द जनरल असेंबली. This is the main organ of the UNO and it is made up of all the members. The assembly can discuss and make recommendation on any matter of international importance. Its function is to review, criticize and supervise the action of the UNO. In the General Assembly, all countries are equal. Every country can find 5 representatives but they have only 1 vote. Discussion on important matters
are made by 2/3 of the members present and voting. The assembly elect a different president for each section. The General Assembly is responsible for electing members to the Trustship Council and the ECOSCOS. The most important election duty is that of the 6 non-parliamentary member of the Security Council. The Assembly appoints the Secretary General on the recommendation of the Security Council. Security Council. The main organ established by the UNO to preserve peace and security is the Security Council. See, from the name itself, it is very clear, right? सिक्योरिटी काउंसिल. अब सिक्योरिटी काउंसिल नाम ही ऐसा दिया है तो इस पर से क्या है, उनका काम क्या है कि बाबा सिक्योरिटी एंड पीस प्रिजर्व करके रखना, हर कंट्री में ये मेंटेन करके रखना. It has the authority to investigate any dispute between nations and to recommend peaceful solution. See, अभी सिक्योरिटी काउंसिल को क्या है, पूरी अथॉरिटी है किस बात की, कि वो सब कुछ इन्वेस्टिगेट करे. कुछ भी डिस्प्यूट रहा बिटवीन टू, कोई नेशन के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है तो वो उसमें इन्वेस्टिगेट करे और देखे कि सब कुछ पीसफुली सॉल्व हो. लाइक इट गिव्स अ पीसफुल ऐसा सोल्यूशन निकाले कि सब कुछ ठीक हो जाए, एवरीथिंग गोज इन अ स्मूदर वे एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट. It has the right to use diplomatic and economic measures to preserve peace. See, it has the right to use. अब उनको right क्या है? It has the right to use diplomatic and economic measure to preserve peace. It also has the right to use air, naval or land force against the aggressor to restore international order. It is both a peacemaker and a policeman. See, सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? कितना बड़ा काम है आज सिक्योरिटी काउंसिल का. क्या है, किसी भी नेशन के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है तो इन्वेस्टिगेट करें एंड वी कम अप विद सम पीसफुल सोल्यूशन, राइट? अगर किधर कुछ वॉर जैसा हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये गलत करने जाएगा तो सिक्योरिटी काउंसिल को पूरा राइट है टू यूज़ इट्स एयर फोर्स, नेवल फोर्स और लैंड फोर्स अगेंस्ट द एग्रेसर कंट्री. क्यों? ताकि इंटरनेशनल ऑर्डर अच्छे से बना रहे, राइट? तो सिक्योरिटी काउंसिल को क्या बोला है उन्होंने? इट इज़ अ पीस मेकर ऑल्सो एंड अ पुलिसमैन ऑल्सो. द सिक्योरिटी काउंसिल इज मेड अप ऑफ 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 6 नॉन परमानेंट मेंबर्स. से सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं? 5 मेंबर्स हैं जो परमानेंट है और 6 मेंबर्स क्या है? दे आर नॉन परमानेंट. मे बी रोटेशन वाइज चेंज होता होगा, ऐसे कुछ रहेगा 6 मेंबर्स. द परमानेंट मेंबर्स आर ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर एंड द चाइना. सी, सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर कौन से हैं जो परमानेंट है, कौन से कंट्री के हैं? दे आर फ्रॉम ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर एंड चाइना. द फर्स्ट नॉन परमानेंट मेंबर्स आर ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, पोलैंड, मेक्सिको, होलैंड एंड इजिप्ट. और नॉन परमानेंट मेंबर्स फर्स्ट कौन से किसके हैं? नॉन परमानेंट मेंबर्स को पहला रेफरेंस है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, पोलैंड, मेक्सिको, होलैंड एंड इजिप्ट कंट्रीज़ के लिए. इट सीम्स लाइक द स्मॉल नेशंस हैव अ मेजॉरिटी. अब ऐसा बोला ये जो छोटे छोटे नेशंस हैं उनको मेजॉरिटी दी गई है, बट दिस इज बैलेंस्ड बाय द वेंटो वोट्स ऑफ द परमानेंट मेंबर्स. बट क्या है, here everything is balanced by the veto voters of the permanent members. In order to reach a decision on important matters, the 5 permanent members must all agree. See, कोई भी important decision पे आपको आना है, like you have to take some important decision. तो ये जो 5 permanent members हैं, like फ्रांस, ब्राज़ील, फ्रांस, चाइना, ब्रिटेन, यूएसए, यूएसएसआर, इन ये 5 परमानेंट मेंबर से ये मानने चाहिए. अगर ये 5 परमानेंट मेंबर उस डिसीजन के लिए मानते हैं तभी बात आगे बढ़ेगी. इवन इफ 1 मेंबर अपोजेस बाय कास्टिंग अ वेंटो वोट, अ डिसीजन कैन नॉट बी टेकन. देखो, अगर 5 में से किसी एक ने भी मना कर दिया, किसी एक ने भी नहीं ये गलत डिसीजन है ऐसा बोल दिया, या उसको लगता है कि ये गलत डिसीजन है, तो वो डिसीजन नहीं होगा. लाइक
पांचों परमानेंट मेंबर्स मानने ही चाहिए यहाँ पे। However, to apply economic, military or democratic sanction, all five permanent members and two non-permanent members must agree. See, अभी कभी कभार सिचुएशन खराब भी हो जाती है, तो टू अप्लाई इकोनॉमिक, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सैंक्शंस तो पांचों मेंबर्स मानने चाहिए, और साथ में नॉन परमानेंट मेंबर्स जो 6 नॉन परमानेंट मेंबर्स है उसमें से एटलीस्ट 2 नॉन परमानेंट मेंबर्स एग्री होने चाहिए। द काउंसिल हैज़ कंप्लीट अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर पीस इज बीइंग थ्रेटन और नॉट। सी, ये सिक्योरिटी काउंसिल को क्या है, पूरा अधिकार है डिसाइड करने का कि अब अगर पीस के लिए पीस नहीं है या शायद इस नेशन का पीस खतरे में आ सकता है इस नेशन की वजह से, ये सारा कंप्लीट डिसाइड करने का काम काउंसिल का ही है। इट्स पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज अनलिमिटेड। सी, उनके पास जो इन्वेस्टिगेशन पावर है वो कैसा है, इट इज़ अनलिमिटेड। इट वर्क्स इफिशिएंटली एंड कैन टेक एक्शन इन एवरी 7 days। सी, उनको पावर अनलिमिटेड है, राइट, एंड इट कैन वर्क इफिशिएंटली। हाउ इट कैन वर्क, इट वर्क्स इफिशिएंटली एंड इट कैन टेक एनी एक्शन इन 7 days। 7 दिन में भी वो कोई भी एक्शन ले सकती है। It can go into session at any time and function immediately। See, वो कोई भी सेशन बुला सकती है और कभी भी कुछ भी फंक्शन इमिडिएटली कर सकती है। Moving towards the next page, that is the Economic and Social Council। अरे उल्टा गई मैं। Economic and Social Council, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का शॉर्ट फॉर्म क्या क्या है, इकोसोश। इकोसोशो इज अ स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव एजेंसी फॉर ह्यूमन वेलफेयर। सी, ये क्या है, इकोसोशो क्या है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव एजेंसी। किसके लिए काम करती है, इट वर्क्स फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। इट्स एम इज टू प्रमोट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। सी, इट्स उनका एम क्या है, its aim is to promote of social and economic well-being। It seeks to provide solution for economic, social, healthy and related problem। See, वो क्या करता है, it gives you solution for your economic, social, health and other related problem। See, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल किसके लिए काम करता है, फॉर ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करता है। उनका एम क्या है कि प्रमोट करना, इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग प्रमोट करना, और इसके ऊपर अगर इस पर कुछ प्रॉब्लम आती है तो इट शुड कम अप विथ सम सॉल्यूशंस ऑल्सो। इट सीक्स टू डेवलप रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ रेस, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन। सी, व्हाट इट सीक्स टू डेवलप रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। सी, वो क्या काम करना है उनको यहाँ पे, उनको इट सीक्स टू डेवलप रिस्पेक्ट, ह्यूमन राइट्स के लिए रिस्पेक्ट रखना, फंडामेंटल फ्रीडम सबको मिलनी चाहिए। फिर आप कोई भी कास्ट के रहने दो, कोई भी रिलीजन के रहने दो, वॉट एवर सेक्स यू आर, लैंग्वेज, इन सब की फ्रीडम मिलनी चाहिए आपको। द काउंसिल इज मेड अप ऑफ 18 मेंबर स्टेट्स, ईच विथ 1 रिप्रेजेंटेटिव। सी, अब काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं, यहाँ पे 18 मेंबर्स हैं, राइट। अपने सिक्योरिटी काउंसिल में कितने थे, 5 परमानेंट थे एंड 6 नॉन परमानेंट थे। यहाँ पे इकोनॉमिक सोशल काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं, 18 मेंबर स्टेट्स हैं, और हर कंट्री का लाइक ईच विथ 1 रिप्रेजेंटेटिव, और उनका सबका एक रिप्रेजेंटेटिव है। डिसीजंस आर मेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब इकोनॉमिक सोशल काउंसिल में डिसीजन कैसा होता है, इट इज़ मेड बाय डिसीजन एज पर मेजॉरिटी होता है, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, कितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और क्या वोटिंग कितना है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है। द स्कोप ऑफ द काउंसिल एक्सटेंड टू एवरी ह्यूमन एक्टिविटी ऑफ इंटरनेशनल इंटरेस्ट। सी, द स्कोप ऑफ द काउंसिल, अब ये काउंसिल का स्कोप कितना है कि बाबा हर ह्यूमन एक्टिविटी को देखने का,
ऑफ इंटरनेशनल इंटरेस्ट। फिर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी हो, इट शुड बी इंटरनेशनल इंटरेस्ट पे आपको बात करनी है उसका। लाइक कोई भी लैंग्वेज हो, इट शुड बी ऑन द इंटरनेशनल इंटरेस्ट का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे यूएनओ में क्या है, हर कंट्री, कितने कंट्रीज मेंबर है, 193। तो लैंग्वेजेस कितने यूज़ करे जाते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं वहाँ पे, 6 है, राइट। चाइनीज़, जर्मन, फ्रेंच, अरेबिक, इंग्लिश, एज इन 6 लैंग्वेज है ऐसे। तो हर इट ऑल वर्क्स एट एन इंटरनेशनल इंटरेस्ट। इकोसोशियो हैज़ created various commissions to help people। सी, इको सोशो ने क्या किए हैं, अलग अलग कमीशंस बनाए हैं ताकि वो लोगों को हेल्प कर सके। लोगों की मदद के लिए दे हैव कम अप विद अब डिफरेंट डिफरेंट कमीशंस। द इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट कमीशन इज कंसर्न्ड विद डिवास्टेटेड एरिया एंड एम्प्लॉयमेंट। सी, अभी इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट कमीशन का क्या काम बोल रहे हैं। सी, जहाँ पे सब तहस नहस हो चुका है, जहाँ पे इकोनॉमी पूरी ख़राब हो चुकी है, वहाँ पे हेल्प करने का। जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का पूरा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का, ये सारा काम किसका है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का, राइट। तो इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट कमीशन इज कंसर्न्ड विद डिवास्टेटेड एरिया एंड एम्प्लॉयमेंट। The Social Commission deals with standard of living, food, clothing, healthcare, etc. See, the Social Commission क्या करता है? The Social Commission deals with standard of living, food, clothing, healthcare, etc. The Eco-Social cooperates with other agencies like the UNESCO, United Nations, Education, Scientific and Cultural Organization। See, अब ये इको सोशो कल्चर क्या करता है, अदर एजेंसी के साथ भी कॉपरेट करता है। अब अदर एजेंसी क्या है, यूनेस्को यानी क्या, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ अच्छे से कॉपरेट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट कॉपरेट्स विद द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। The job of eco-socio requires action on a cooperative and non-political basis। See, ये eco-socio काउंसिल कैसे काम करना चाहिए, इट शुड वर्क विथ, जहाँ जहाँ पे एक्शन लेना ज़रूरी है वहाँ वहाँ पे एक्शन लेने का, अच्छे से आपके साथ कॉपरेट करने का। यहाँ पे पॉलिटिकल बेसिस पे काम नहीं कर सकते आप। Its future depends on the intelligence and goodwill of the people of the member nations। See, उनका फ्यूचर किस पे डिपेंड होता है, इट फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द इंटेलिजेंस एंड गुडविल ऑफ द पीपल ऑफ द मेंबर नेशन। देन मूविंग टूवर्ड्स द फोर्थ पॉइंट, दैट इज द ट्रस्टशिप काउंसिल। दिस काउंसिल टेक केयर ऑफ द पीपल लिविंग इन टेरिटरी held under the League of Nations mandate or the territory surrendered by the excess power coming under the trust। See, ये काउंसिल किसका ध्यान रखती है, दिस काउंसिल टेक केयर ऑफ द पीपल लिविंग इन टेरिटरी, जो लोग उस टेरिटरी में रहते हैं, लीग के टेरिटरी में वगैरह रहते हैं, हाँ, या फिर उन्होंने अपनी टेरिटरी लीग को सरेंडर की है, उनको दे वर्क अंडर द ट्रस्ट, they work as an under trust। It also receives report on the progress made in the trust territories under the concerned power। See, ये क्या करता है, उनको रिपोर्ट भी मिलती है कि बाबा ये जो ट्रस्ट की अपनी टेरिटरी है, जो भरोसे से अपने को टेरिटरी मिली है, उसके अंदर काम कैसे चल रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कैसे क्या काम कर रहा है, उन सब का रिपोर्ट भी उनको मिलता है फ्रॉम द कंसर्न पावर। People in these areas were also permitted to present complaints or permissions। See, people in this area, मतलब जो लोग इस एरिया में हैं उनको भी परमिशन दी गई थी कि बाबा आपके कंप्लेंट्स जो भी है आप बोलो। पेटिशन यानी क्या, इस कंट्री ने मेरे साथ गलत किया है, ये बाजू की कंट्री है, उन्होंने स्टेट है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, तो उनके अगेंस्ट में पेटिशन फाइल कर रहा हूँ। तो ये सारा काम आप UN में कर सकते हो। Trust territories and members elected by the General Assemblies। See,
trust territories and members elected by the General Assembly. अब territories and members कहाँ से elect होते हैं? They are elected by the General Assembly. This council elects a president at the beginning of each section and meet twice or in a year. See, ये council क्या करती है? This council elects a president. ये council एक president बनाती है सेशन के स्टार्टिंग में ही, और वो साल में 2 बार मिलते हैं. राइट, इनका भी एक प्रेसिडेंट होता है और साल में 2 बार मिलते हैं, ताकि कुछ इश्यूज रहेंगे जो भी होंगे, एवरीथिंग कैन बी डिस्कस्ड इन अ प्रॉपर वे. फिफ्थ वन इज द सेक्रेटरीट. दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएनओ. ये क्या है? सेक्रेटरी क्या है? ये मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएनओ है. इट सर्व्स एज अ परमानेंट liaison between the different branches of the UNO and between the specialized agencies also. See, अब क्या है? It serves as a permanent liaison. ये क्या है? एक permanent link जैसा काम करता है between अलग अलग branches of the UNO and between the specialized agency. It prepares for every session in the assembly of the ECOSOCIO and of the Trustship Council. See, अब हर सेशन से पहले जो भी तैयारी करनी रहती है, लाइक असेंबली में ऑफ असेंबली किसकी होती है? यहाँ पे इकोसोशियो काउंसिल की होती है. ट्रस्टशिप की काउंसिल से पहले जो भी प्रिपरेशंस करनी रहती है, ये सब करते हैं. द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल अपॉइंट्स द सेक्रेटरी जनरल. सी, अभी क्या है? जनरल असेंबली में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल they appoint the general secretary general. He represents the UNO in the eye of the whole world. See, ये UNO को represent करता है पूरे वर्ल्ड में. UNO को ये जनरल सेक्रेटरी रिप्रेजेंट करता है. He has the power to appoint the entire stall of the secretariat. See, उसको क्या पावर रहती है? He has the power to appoint the entire stall of the secretariat. He has to present the annual report to the general meeting. See, अब ये सेक्रेटरीट को क्या करना पड़ता है? उसको एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करना पड़ता है. जब जनरल असेंबली होती है तो सारा एनुअल रिपोर्ट ही सपोज टू प्रेजेंट ओवर देयर. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द जनरल सेक्रेटरी जनरल इज हिज राइट टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एनी मैटर that may threaten the maintaining of international peace and security. See, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है सेक्रेटरी जनरल का? क्या है? एक तो अटेंशन, सिक्योरिटी काउंसिल का अटेंशन लेके आने का, किसी जो मैटर जिससे अपना पीस या इंटरनेशनल ऑर्डर हिल सकता है, लाइक पीस एंड सिक्योरिटी को जब भी खतरा होगा तो जनरल सेक्रेटरी ने क्या करना है? सिक्योरिटी काउंसिल को अलर्ट करना है यहाँ पे. फाइनली, he is responsible for preparing the budget, allotting funds and controlling expenditure and for collecting contribution from member state. See, ये जो सेक्रेटरीट है, he is responsible for बजट प्रॉपर बनाने का, सबको फंड्स प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करने का, सारा एक्सपेंडिचर कंट्रोल करने का और मेंबर से कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करने का हर साल. नाउ द लास्ट वन इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. This court is situated at the Hague in Holland. See, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है? पूरे वर्ल्ड में ये एक ही है. कहाँ पे है ये? हॉलैंड में है, इन हैगे. It consists of 15 judges elected by the General Assembly and the Security Council. अब इसके अंदर कितने जजेस हैं? हाँ, it consists of 15 judges. 15 जजेस है. और ये कैसे आए हैं? इट हैज़ बिन इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल. नो टू जज कैन बी फ्रॉम द सेम कंट्री. अब जब अपन 15 जजेस बोल रहे हैं तो 15 जजेस सेम कंट्री के वगैरह हो सकते हैं. 1-2-3 जज एक ही कंट्री के हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना. बट नहीं, यहाँ पे जो भी 15 जजेस है सब अलग अलग कंट्री के रहेंगे. द जजेस आर इलेक्टेड फॉर 9 years. सी, एक बार आप ये इसके जज बन गए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के एक बार आप जज बन गए, देन यू आर इलेक्टेड फॉर 9 years. आप 9 साल तक जज बन के रहोगे. ओनली द कोर्ट कैन डिसमिस देम. सिर्फ
कोर्ट डिसमिस कर सकती है। मैनी कंट्रीज हैव साइंड एन ऑप्शनल क्लॉज बाय विच दे एक्सेप्ट द कोर्ट्स डिसीजन एज बाइंडिंग इन ऑल लीगल डिस्प्यूट। सी, मैनी कंट्रीज क्या करती है, मैनी कंट्रीज हैव साइंड एन ऑप्शनल क्लॉज, जैसे क्या है, वो कोर्ट का डिसीजन एक्सेप्ट करते हैं एंड इट इज़ बाइंडिंग इन ऑल लीगल डिस्प्यूट, और हर लीगल डिस्प्यूट पे उनका डिसीजन ये बाइंडिंग रहेगा। एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन of the court is to provide adversary option to the General Assembly and the Security Council on request. See, sorry, एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कोर्ट क्या है, इज टू प्रोवाइड एडवर्सरी ऑप्शन। वो एक एडवर्सरी ऑप्शन दे सकता है आपको टू द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल ऑन रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में सिक्योरिटी काउंसिल को भी ये कर सकता है। Next topic, peacekeeping functions of United Nations. We'll start this next point in the next class. We'll end the lecture here today. You can read the topic then. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.